Hi students, let's start with the third lecture of solutions and corrugative property. Now this lecture will be based on vapor pressure, okay? But we are going to discuss vapor pressure in terms of solutions, binary solutions, solute plus solvent. Now first of all, let us revise vapor pressure from our standard 11th. What was there in 11th standard with respect to vapor pressure? Okay, so vapor pressure क्या है basically? So suppose if I take a beaker consists of water half filled, okay, and the entire beaker is closed by a lid. Lid से मैंने इसको बंद कर दिया, so it is closed now, covered. Now we know that water shows evaporation even at the room temperature. ठीक है, रूम टेम्परेचर भी वाटर इवेपोरेट हो जाता है, जिसमें इट कन्वर्ट इटसेल्फ फ्रॉम द लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट. सो व्हाट विल हैपन व्हेन यू कीप दिस वाटर हाफ फिल्ड इन अ बीकर? द वाटर मॉलिक्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस, दे विल गेन द हीट एनर्जी, they will break their hydrogen bond and they will convert themselves into vapor state. Yeah? Vapor state, that is a gaseous state, and here this is H2O, a liquid state. Okay, now this is called as evaporation process. Initially the speed of evaporation is very high. The molecules are present on the surface, they are getting evaporated. But at the same time, small amount of molecule comes to the surface and get condensed. तो यहाँ पर दोनों प्रोसेस चल रहा है in a closed container, evaporation as well as condensation. Now, a time will come when the entire space gets saturated with H2O vapors. अब कोई और दूसरे H2O vapors की जगह नहीं है. This entire space is filled with H2O vapor. That is a point of saturation of the empty space. So now what will happen? क्या evaporation रुक जाएगा? नहीं. At this state of saturation, जब यहाँ पर एक भी वेपर की जगह नहीं है तो evaporation रुकेगा नहीं. In fact, what will happen? If one molecule get evaporate, at the same speed one molecule get condense. मतलब एक मॉलिक्यूल अगर लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जाएगा तो वही सेम स्पीड से एक मॉलिक्यूल गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में आएगा, ताकि ये जगह का इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे. एंड वी कैन से दैट नाउ there is an equilibrium between H2O in liquid state and H2O in gaseous state, where the rate of evaporation is equal to rate of condensation. मतलब rate of forward is equal to rate of backward direction. That is a dynamic equilibrium. मतलब ये condensation evaporation रुकेगा नहीं, it will keep on going in a closed container. ठीक है. Now at this point, the pressure exerted by the vapors on the surface of its own liquid in equilibrium with the liquid is called as vapor pressure. तो इसको vapor pressure बोलते हैं. So vapor pressure is defined as the pressure exerted by the vapor on the surface of its own liquid in equilibrium with the liquid. Equilibrium का होना बहुत जरूरी है. So that is called as vapor pressure. ठीक है. अब जो मैंने लिक्विड लिया है वाटर, वो एक टाइप का वोलेटाइल लिक्विड है, वो इवेपोरेट हो जाता है, बट उसकी वोलेटिलिटी थोड़ी कम है. अब now I will see what is the effect on vapor pressure if we heat it. तो अगर हम लोग हीट करेंगे तो क्या होगा? ऑब्वियसली आप बोलेंगे सर, if we heat more amount of vapors will be formed, so vapor pressure will increase. ऑब्वियसली मतलब vapor pressure बढ़ेगा हीट करने से, ज़्यादा वेपर्स बनेंगे, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, तो ऑब्वियसली ऑन हीटिंग vapor pressure will increase. Now what will happen when you add another volatile liquid to this? Now obviously water जो है वो यहाँ पर volatile है, इसकी volatility थोड़ी कम होती है, बट ये वेपर्स बना ही रहा है. अब इसके अंदर आपने एक और एक volatile liquid डाल दिया. Suppose you add acetone to it, CH3COCH3, acetone ऐड कर दिया. तो what will happen when you add acetone to it? It will, acetone is kind of a volatile liquid. तो acetone क्या करेगा? ये खुद के वेपर्स बनाना चालू कर देगा. तो अभी वाटर के भी वेपर्स है और एसीटोन के भी वेपर्स है, मतलब नंबर ऑफ वेपर विल इंक्रीज. सो इफ नंबर ऑफ वेपर इंक्रीज, वेपर प्रेशर विल इंक्रीज. बट व्हाट विल हैपन व्हेन यू ऐड अ नॉन वोलेटाइल solute or non-volatile substance to it?
सो व्हाट हैपेंस टू द वेपर प्रेशर, स्टडी कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखो वेपर प्रेशर जो है वो वेपर्स के बनने से बनता है। एंड वेपर्स कैसे बनेगा? व्हेन वाटर मॉलिक्यूल्स या व्हेन लिक्विड मॉलिक्यूल गेट इवेपोरेट फ्रॉम द सरफेस। इसका मतलब इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है। तो इस बीकर में earlier there was pure water inside, so this was pure water. So here you have water molecules on the surface, only and only water molecule which are undergoing evaporation process forming vapors. तो वेपर्स कहां से बनते हैं? सरफेस से बनते हैं। सपोज तो अब जो ये वेपर्स बना रहे हैं, फिर सैचुरेशन पॉइंट आएगा, सैचुरेशन पॉइंट के बाद में एक इक्विलिब्रियम डेवलप होगा, उस इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर होगा उसको हम लोग वेपर प्रेशर बोलेंगे। तो दिस इज अ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, इसको हम लोग P नॉट कर देते हैं, ठीक है। अब इसी के अंदर, इसके अंदर सपोज यू ऐड NaCl। नाउ NaCl इज नॉन वोलेटाइल, मतलब ये वेपर्स नहीं बनाता। तो जब ऐड करोगे तो क्या होगा? अब सरफेस पे क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल के साथ में you will have Na plus and Cl minus ions also present on the surface. Along with water molecule you have positive ions and negative ions on the surface. अब those positive ions and negative ions are nothing but Na plus and Cl minus, और Na plus Cl minus volatile है ही नहीं, तो वो वेपर बनाएगा ही नहीं, खाली स्पेस ऑक्यूपाई करके रखेगा। तो इस टाइम पे जो वेपर्स बनेंगे, that vapor from the surface will be less because here there were only and only water molecule which are present on the surface and nothing else. And here there will be a water molecule as well as a non-volatile species which won't form vapors. तो obviously यहाँ पर जो number of vapors है वो कम हो गए। Suppose यहाँ पर 1000 molecules है, suppose 10,000 molecules है suppose surface पे, तो all those 10,000 molecules of water will evaporate. बट यहां पर जब आपने NaCl डाला तो सरफेस पे, इवेपोरेशन से सरफेस फिनोमेना, सरफेस पे जो वाटर मॉलिक्यूल होगा विल बी लेस देन 10,000, इससे कम होगा। तो अब जो सोल्यूशन बना, ऑब्वियसली सोल्यूट ऐड करोगे तो ये सोल्यूशन बन जाएगा। तो सोल्यूशन जो बनेगा उसका जो वेपर प्रेशर होगा इट विल बी ऑब्वियसली लेस बिकॉज नंबर ऑफ वेपर्स फॉर्म विल बी लेस, क्योंकि अब सरफेस पे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट्स आ गए। सो वी कैन से दैट इन सच केस P सोल्यूशन इज लेस देन P नॉट। और अगर इसी के अंदर आपने ऐड कर दिया होता वोलेटाइल लिक्विड, वोलेटाइल, तो वोलेटाइल अपने खुद के वेपर्स बनाएगा प्लस वाटर के भी वेपर्स बनेंगे। तो इस कंडीशन में देयर विल बी लॉट ऑफ वेपर्स विच आर फॉर्मिंग योर, लॉट ऑफ वेपर्स, वोलेटाइल लिक्विड के भी वेपर है या वोलेटाइल सल्यूट के भी वेपर है प्लस वाटर के भी वेपर है। सो इन दिस केस अगर मैं P सोल्यूशन फाइंड करूंगा तो P सोल्यूशन विल बी ग्रेटर देन P नॉट। क्लियर है? सो याद रखने का, इन केस ऑफ अ वोलेटाइल लिक्विड जो ऑलरेडी वेपर बनाता है उसमें आपने नॉन वोलेटाइल सल्यूट या नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस ऐड किया तो जो सोल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर ओरिजिनल से कम होगा। एंड इन केस ऑफ वोलेटाइल लिक्विड when you add a volatile solute जो वेपर्स बना सकता है, तो now number of vapor will be more and the vapor pressure of the solution will be more than the original. Okay, so as temperature increases vapor pressure increases, addition of volatile substance vapor pressure increases, addition of non volatile substance vapor pressure decreases. Okay, so note this point first, very important आगे समझने के लिए। पॉज कर लो, नोट डाउन कर लो। Now after discussing vapor pressure and the factor affecting vapor pressure, let us now talk about Raoult's law. Now Raoult's law help us to find out vapor pressure of liquid solution. It means कि सॉल्वेंट आपका लिक्विड रहेगा इस केस में। ओके, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना। अच्छा, अब जो हम लोग यहाँ सोल्यूशन डिस्कस करेंगे दैट सोल्यूशन इज अ बाइनरी सोल्यूशन। सो बाइनरी सोल्यूशन में देयर इज वन सोल्यूट प्लस वन सॉल्वेंट। ओके, दैट इज राउल्ट्स लॉ। Now before starting with Raoult's law, मतलब एप्लीकेशन आप समझ गए, we are going to find out vapor pressure of liquid solution, solution का vapor pressure ढूंढना है। Now before starting with this,
यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रेशर. अगर मैंने एक कंटेनर में इफ आई एम टेकिंग हाइड्रोजन गैस, प्योर हाइड्रोजन गैस एंड नथिंग एल्स, तो यहां पर जो प्रेशर डेवलप होता है, अच्छा गैस की बात नहीं करता हूं, सॉरी, आई विल टेक अ वोलेटाइल लिक्विड हियर. समझो मैंने यहां पर एक वोलेटाइल लिक्विड लिया है, दैट लिक्विड इज CH3COCH3 एसीटोन, सपोज प्योर. तो ओनली एसीटोन एंड नथिंग एल्स, सो एसीटोन विल फॉर्म वेपर इनसाइड इन अ क्लोज कंटेनर. तो यहां पर जो प्रेशर डेवलप होगा दैट विल बी कॉल्ड एज P0, प्योर प्रेशर. याद रखने का, दिस इज कॉल्ड एज प्योर प्रेशर और प्रेशर ऑफ ओरिजिनल कंपाउंड. बट अगर मैंने 2 लिक्विड मिक्स कर दिए साथ में, 2 liquids are mixed together, suppose that is liquid A and liquid B, 2 डिफरेंट लिक्विड है, मिक्स कर दिया मैंने इसके अंदर. अच्छा, दोनों वोलेटाइल है, ठीक है, दोनों लिक्विड क्या है, वोलेटाइल. तो वो अपने वेपर्स बनाएंगे यहां पर. तो इफ आई आस्क यू इज दिस अ सोल्यूशन, आप बोलेंगे यस सर, मिक्सिंग ऑफ 2 लिक्विड दैट इज नथिंग बट अ सोल्यूशन. तो ये एक सोल्यूशन है. तो यहां जो टोटल वेपर्स फॉर्म हो गए दैट विल बी कॉल्ड एज वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन. सो दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन. अब इसके अंदर वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन किससे बना है? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज मेड अप ऑफ partial pressure of A and partial pressure of B. So partial pressure of A and partial pressure of B. Clear है? तो this PA and PB are called as partial pressure. That is pressure of individual gas या single gas in a mixture. मिक्सचर में अगर आप 2 गैस का मिक्सचर हुआ ना, यहां पर 2 लिक्विड्स का मिक्सचर हुआ, अगर उस मिक्सचर में आपने किसी एक का पार्शियल प्रेशर, हम लोग यहां लिक्विड की बात करें तो हम लोग यहां लिखते थे सिंगल लिक्विड प्रेशर, द सिंगल वेपर फॉर्म बाय द सिंगल लिक्विड. तो अगर आप मिक्सचर में किसी एक का प्रेशर निकाल रहे हो तो उसको पार्शियल प्रेशर बोलते हैं. आप टोटल प्रेशर अगर निकालते हो मिक्सचर का, टोटल प्रेशर मिक्सचर का निकालते हो तो उसको प्रेशर ऑफ सोल्यूशन बोलते हैं. एंड इफ यू टेक अ सिंगल गैस, सॉरी सिंगल लिक्विड, अ वोलेटाइल लिक्विड इन अ कंटेनर, सिंगल और कुछ नहीं है, प्योर फॉर्म है, तो दैट प्रेशर विल बी कॉल्ड एज P0. सो वी हैव 3 टाइप ऑफ प्रेशर. P0 द प्योर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, एंड द पार्शियल प्रेशर दैट इज द प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट इन अ मिक्सचर. ओके, सो 3 टाइप के प्रेशर हो गए. अच्छा, गैस के लिए हम लोगों ने डेल्टन्स लॉ किया था 11th स्टैंडर्ड में, आपको याद होगा 11th स्टैंडर्ड में डेल्टन्स लॉ ये बोलता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू टोटल प्रेशर. ये लॉ गैस के लिए था. हम लोग यहां बात करने वाले हैं लिक्विड के लिए. ओके, सो दिस वाज डेल्टन्स लॉ फॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस. लेकिन अगर आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड कंपोनेंट्स, वोलेटाइल लिक्विड कंपोनेंट्स फाइंड करना है तो हमको राउल्ट्स लॉ का हेल्प लाना पड़ेगा. तो राउल्ट्स लॉ इज यूज्ड टू फाइंड पार्शियल प्रेशर, ठीक है, ऑफ लिक्विड कंपोनेंट्स. लेकिन लिक्विड कंपोनेंट्स हम लोग क्या सिलेक्ट कर रहे हैं? वोलेटाइल. ओके, और गैस के लिए हम लोग क्या लेते हैं? डेल्टन्स लॉ. अच्छा, ये यूज करके आप वेपर प्रेशर पूरे सोल्यूशन का भी निकाल सकते हैं, बिकॉज सोल्यूशन का वेपर प्रेशर पार्शियल प्रेशर से ही बनता है. मतलब अगर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया PA प्लस PB, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B विल गिव यू द पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन. लेकिन पार्शियल प्रेशर ऑफ A और B कैसे निकालते हैं? राउल्ट्स लॉ से, बाय यूजिंग राउल्ट्स लॉ. ओके, तो नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज राउल्ट्स लॉ. आप समझ गए यहां पर? तो राउल्ट्स लॉ हम लोग को हेल्प करेगा पार्शियल प्रेशर लिक्विड कंपोनेंट्स का निकालने के लिए. गैस के लिए निकालने के लिए डेल्टन्स लॉ था. ओके गाइस, सो लेट्स टॉक अबाउट बाइनरी सॉल्यूशन और उसमें राउल्ट्स लॉ को अप्लाई करेंगे. सो बाइनरी सॉल्यूशन में मैं सबसे पहला
एग्जाम्पल ले रहा हूं, मिक्सिंग ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड, मतलब वोलेटाइल कंपोनेंट ए या वोलेटाइल लिक्विड ए इज मिक्स्ड विथ वोलेटाइल लिक्विड बी। सपोज बी आपका सल्यूट बना दो और ए को सॉल्वेंट बना दो, ये दोनों को आप मिक्स कर रहे हो, ठीक है। सो मैं 2 कंटेनर ले रहा हूं, टेकिंग 2 कंटेनर्स हियर, दिस इज प्योर लिक्विड ए, तो यहां पर जो इसका प्रेशर डेवलप होगा दैट विल बी कॉल्ड एज पी नॉट ए, ओके। फिर उसके बाद में मैं इसके साथ में एक दूसरा कंटेनर ले रहा हूं, दिस कंसिस्ट ऑफ अगेन अ वोलेटाइल लिक्विड बी। अब दोनों वोलेटाइल है तो ये भी वेपर्स बनाएंगे, तो इसका जो प्योर प्रेशर होगा वो पी नॉट बी होगा। देन यू मिक्स देम, सो व्हेन यू मिक्स देम इन अ लार्ज कंटेनर, this will make a solution because this is a liquid of A plus liquid B। तो अब ये एक solution बन गया है। Now here it will be vapors of A plus vapor of B। So vapor of A का जो pressure होगा that will be called as partial pressure of A, और जो B का होगा that is called as partial pressure of B। तो अगर मैं आपको बोलूँगा कि what is partial pressure of solution, तो you will say sir the vapor pressure of solution, so sir vapor pressure of entire solution will be equal to partial pressure of A plus partial pressure of B, that is the pressure exerted by A in a mixture plus the pressure exerted by B in a mixture, very simple, that will be the total pressure, ठीक है, that is the vapor pressure of solution, total pressure। but what is partial pressure of A and partial pressure of B, तो ये पार्ट हम लोगों को एक्सप्लेन करता है राउल्ट्स लॉ। इट सेज, द लॉ सेज कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ mole fraction and its pure pressure। एक ये स्टेटमेंट हम लोग यूज करते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू इट्स प्योर प्रेशर। तो ए का प्योर प्रेशर क्या था, पी नॉट ए, ठीक है। नाउ सपोज इसके मोल फ्रैक्शन को मैं x1 ले लेता हूं। अब सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ B विल बी इक्वल टू x2 इंटू पी नॉट बी, ठीक है। अब एक काम करता हूं, ये A को पी नॉट ए को मैं पी नॉट 1 ले लेता हूं और पी नॉट बी को मैं पी नॉट 2 ले लेता हूं। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि प्योर प्रेशर मैंने यहां पर A का पी नॉट 1 लिया है और यहाँ का मैं पी नॉट 2 ले रहा हूँ, बी का, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी का। तो राउल्ट्स लॉ सेज, अच्छा अभी बराबर देखो, मोल फ्रैक्शन दिस पी नॉट ए एंड पी नॉट बी, दैट इज पी नॉट 1 एंड पी नॉट 2 आर द प्योर प्रेशर। प्योर प्रेशर विल ऑलवेज रिमेन व्हाट, कांस्टेंट। तो अगर ये टर्म कांस्टेंट हो गया तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। तो ये भी राउल्ट्स लॉ हो गया। तो राउल्ट्स लॉ के लिए हम लोग दूसरा स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं, एक तो ये हो गया प्रोडक्ट वाला स्टेटमेंट, दूसरा व्हाट वी कैन राइट डाउन कि हियर द पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट। ओके, बराबर देख लो इसको। क्लियर है? So we can write down that partial pressure exerted by each component in the mixture is directly proportional to its mole fraction. So partial pressure of A will be directly proportional to mole fraction of A. Partial pressure of B is directly proportional to mole fraction of B. That is the statement of Raoult's law. तो यहां से मैं निकाल सकता हूं कि PA की जगह पे we can write down that P solution will be equal to P01 into x1 plus P02 into x2.
अच्छा, किसी एक का आप लोगों को वैल्यू दिया है x1 और x2 का फाइंड करने बोला, तो आपको ये पता होना चाहिए, डू यू रिमेंबर x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1. द एडिशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर इज ऑलवेज इक्वल टू 1. तो हम लोग ये भी कर सकते हैं, इसकी जगह पे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ दैट x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2. एक ही बात हो गया. तो अगर मैं सब्सटीट्यूट करूंगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन विल बी इक्वल टू P1 नॉट इंटू 1 माइनस x2 प्लस P2 नॉट इंटू x2. तो x2 के टर्म में भी पूरा इक्वेशन हो सकता है, या नॉर्मल टर्म में भी आप इक्वेशन निकाल सकते हो ना. एवरीवन इज अवेयर व्हाट इज मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन. ठीक है. नाउ रिमेंबर, ये जो मैं सोल्यूशन जो मिक्स कर रहा हूं, अब ध्यान से सुनना, द सोल्यूशन जो मैंने यहां पर मिक्स किया है, इन दोनों को जो मिक्स किया है, व्हेन यू मिक्स देम द डेल्टा वी ऑफ सोल्यूशन इज जीरो. मतलब द चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो. इट मीन्स आपने ये 50 ml मिक्स 50 ml ए लिया है, 50 ml बी लिया है, तो टोटल वॉल्यूम 100 होगा. ना 100 से ज्यादा होगा ना 100 से कम होगा. मतलब V2 माइनस V1 विल बी जीरो, बिकॉज V1 is 100, 55 plus 50. V2 after mixing is V2. V2 will be also 100. So 100 minus 100 will be 0. तो डेल्टा V of solution 0 लिया है मैंने. Similarly डेल्टा H of solution भी 0 है. डेल्टा H of solution मतलब heat of solution. Neither heat absorb हो रहा है ना heat loss हो रहा है. तो such conditions are conditions of ideal solution. तो जो भी सोल्यूशन जब आप बनाओगे दो लिक्विड्स को मिक्स करके, अगर उनमें डेल्टा वी ऑफ सोल्यूशन जीरो है, डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन जीरो है, तो दोज सॉल्यूशंस आर कॉल्ड एज आइडियल सोल्यूशन बिकॉज दे ओबे राउल्ट्स लॉ. राउल्ट्स लॉ को परफेक्टली ओबे कर रहे हैं. क्लियर है. तो यू हैव टू रिमेंबर कि मैं जो यहां पर कंडीशन ले रहा हूं, अगर 50-50 ml मिक्स किया, मतलब इनिशियल वॉल्यूम मैंने लिक्विड्स का 100 रखा है, तो मिक्स होने के बाद भी वो 100 ही रहेगा. तो V2 माइनस V1 इज जीरो. दे वोंट एब्जॉर्ब हीट नीदर दे लूज हीट. मतलब उनका मिक्सिंग ना एक्सोथर्मिक है ना एंडोथर्मिक है. ठीक है. और वो ऐसा क्यों है? वो ऐसा इसके लिए है क्योंकि हियर आई अज्यूम दैट इंटरैक्शन ऑफ ए, देखो इस केस में इंटरैक्शन ऑफ ए और ए होगा, यहां पर बी और बी आपस में इंटरैक्ट करेंगे, यहां पर ए और बी इंटरैक्ट करेंगे आपस में. ठीक है. तो आइडियल कंडीशन में क्या होता है, द इंटरैक्शन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू द इंटरैक्शन ऑफ ए एंड ए एंड इक्वल टू द इंटरैक्शन ऑफ बी एंड बी. तो मतलब द इंटरैक्शन इज ऑलमोस्ट सेम. सो ये आइडियल कंडीशन की आइडेंटिफिकेशन है. तो मैं यहां पर आइडियल कंडीशन का एग्जांपल ले रहा हूं. बट डेल्टा वी ऑफ सोल्यूशन इज जीरो, डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन इज जीरो इन दैट केस. तो जो भी लिक्विड्स आप मिक्स करोगे, इफ दे फॉलो दीज कंडीशंस, तो दे आर फॉलोइंग राउल्ट्स लॉ, दे विल बी कॉल्ड एज आइडियल सोल्यूशन. प्लीज मेक नोट ऑफ दिस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. व्हाट आर आइडियल सोल्यूशन. ओके. नाउ अब इस वोलेटाइल लिक्विड जो हम लोग ने डिस्कस किया, इनका ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे. ओके. ग्राफ प्लॉट करेंगे और सेम ये ग्राफ आइडियल सोल्यूशन में भी अप्लाई होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया मैंने आइडियल कंडीशन लिया है इसके अंदर. सो ये ग्राफ क्या है? द ग्राफ विल बी अ प्लॉट ऑफ वेपर प्रेशर, which is x. X stands for mole fraction. Okay, for this condition. तो अभी सबसे पहली बात यह है कि यहां पर दो लिक्विड्स आपने लिए, एक लिक्विड A है और एक लिक्विड B है. दोनों वोलेटाइल है नेचर के अंदर, दोनों वेपर्स बनाने वाले हैं. तो अब मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना है, वेपर प्रेशर विथ मोल फ्रैक्शन x. तो चलो पहले मैं यहां पर ध्यान दो, बराबर इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर ले रहा हूं. ठीक है. नाउ सबसे पहले मैं बात करता हूं पीबी की. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू P02 इंटू x2. ठीक है, यहीं से निकाला है, प्लस 0 लिख सकता हूं. ये राउल्ट्स लॉ से आया है दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन द मिक्सचर इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन एंड इट्स प्योर प्रेशर. नाउ बराबर देखो तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू
mx प्लस सी। तो x पे क्या आ रहा है, मोल फ्रैक्शन, y पे क्या आ रहा है, वेपर प्रेशर, और m जो है स्लोप वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, और c जीरो है। c जीरो मतलब इट इज पासिंग फ्रॉम ओरिजिन और स्लोप पॉजिटिव है। तो व्हेन स्लोप इज पॉजिटिव एंड c जीरो मतलब आपका जो भी ग्राफ रहेगा इट पास फ्रॉम ओरिजिन। लेकिन ये कैसे पास होगा बराबर देखना, इसमें दो कंडीशन ले रहा हूं। अगर मैंने x2 को जीरो ले लिया, देखो यहां पर x2 को जीरो ले लिया तो pb भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर मैंने यहां पर x2 को जीरो लिया, x2 इज फॉर, एक्सक्यूज मी, ओके विल कंटिन्यू विद दिस। तो इफ मैंने यहां पर क्या अज्यूम किया, इफ x2 इज जीरो, ऑब्वियसली जब x2 जीरो होगा देन pb बिकम जीरो। तो अब x2 जीरो है तो pb यानी पार्शियल प्रेशर दैट इज द वेपर प्रेशर बिकम जीरो। अब अगर मैंने x2 को 1 ले लिया, इफ x2 इज 1 देन pb बिकम्स p02 द ओरिजिनल प्रेशर। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, जीरो से आप कहां जा रहे हो, 1 की तरफ। सपोज x इक्वल टू 1 प्लॉट इधर आ रहा है, सो द ग्राफ विल इंक्रीज लाइक दिस, इट विल गो इन इंक्रीजिंग मैनर। और यहां से जब आप पेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, सो अगेन ये भी वेपर प्रेशर ही हो गया वाई एक्सिस पे, सो यू विल गेट दिस पॉइंट एज P02 द प्योर प्रेशर। सो दिस लाइन, द ग्राफ ऑफ द लाइन इज फॉर PB इज इक्वल टू P02 x2। हमने दो कंडीशन अज्यूम किया, x2 जीरो से x2 1 गया, तो x2 जीरो है तो PB भी जीरो है, मतलब दैट इज अ वेपर प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ B। तो यहां पर आप PB एक्चुअली प्लॉट कर रहे हो, that is the vapor pressure of B, the partial pressure of B. Similarly, suppose if I take this equation for PA, the partial pressure of A is P1 not x1 plus 0 लिख सकता हूँ। तो अगेन y is equal to mx plus c हो गया। तो इसमें भी यही अज्यूम करेंगे कि x1 अगर 0 है, if x1 is 0 then partial pressure of A is 0। तो यहाँ पर मैंने क्या लिया, x1 को 0 लिया। if x1 is 0 देन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए विल बी जीरो, बिकॉज यहाँ जो प्लॉट आएगा वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का आएगा ना। इफ x1 इज इक्वल टू 1, आपने x1 को 1 ले लिया, देन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए विल बी P1 नॉट द ओरिजिनल प्रेशर। सो x1 जीरो से मैं x1 को 1 ले रहा हूँ, तो इट इज इंक्रीजिंग इन दिस मैनर। देखो ये इंक्रीज होता जाएगा, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये पॉइंट पे आ गया। नाउ दिस पॉइंट बिकम्स व्हाट, P1 नॉट। So this is the line of PB, this is the line of PA. Okay, so we can write down that this graph is for partial pressure of B, this graph is for partial pressure of A, and when you join P1 naught and P2 naught, this becomes partial pressure of total pressure of solution, that is PA plus PB. अब कोई पूछेगा सर why P1 नॉट वैल्यू ऑफ प्रेशर इज मोर एज कंपेयर टू P2 नॉट, बिकॉज हो सकता है कि लिक्विड A इज मोर वोलेटाइल देन लिक्विड B, तो वो ज्यादा वेपर बना रहा है, दैट इज वाई इसकी लाइन थोड़ी ऊपर की तरफ है P01, एंड हियर द प्लॉट इज लिटिल लोअर पोजीशन। व्हाई, बिकॉज प्योर वेपर प्रेशर ऑफ P02 विल बी लेस देन P01, बोथ आर वोलेटाइल, वन विल बी मोर वोलेटाइल। क्लियर है? सो यू अंडरस्टैंड, प्लीज नोट डाउन दिस पार्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू mixing of two volatile liquids, volatile liquid A and volatile liquid B for Raoult's law, first condition, जिसको हम लोग आइडियल कंडीशन भी बना सकते हैं। अगर दोनों लिक्विड्स का आपने वॉल्यूम लिया, मिक्स करने के बाद टोटल वॉल्यूम सेम आएगा। मिक्स करने से पहले दोनों का वॉल्यूम 50-50 है, मिक्स करने के बाद 100 आ रहा है, तो ऑब्वियसली पहले आपका 100 ही था टोटल वॉल्यूम, बाद में भी 100 आ रहा है। इसका मतलब डेल्टा V जीरो, डेल्टा H जीरो, delta HQ 0, neither exothermic endothermic, because interaction of pure AA and pure BB is same as that of AB। और उसके बेसिस का ग्राफ, ये साइड में हम लोग ने वेपर प्रेशर यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ B निकाला है, ये साइड में हम लोग ने वेपर प्रेशर यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ A निकाला है, एंड दिस सिग्निफाइज द ग्राफ फॉर टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। ओके, पॉज इट एंड नोट डाउन। Now let's discuss the second case of Raoult's law. In first case we mixed two volatile components, volatile solute and volatile solvent. Here we mixed two components,
one will be volatile and the second will be non-volatile. So we can write down here a volatile component, volatile liquid A, volatile component A, and second will be non-volatile component B. तो क्या हमको अज्यूम करना है? ऐसा अज्यूम कर लो कि दिस इज योर सॉल्वेंट एंड दिस इज नॉन वोलेटाइल सल्यूट, जो वेपर्स नहीं बनाएगा. नॉन वोलेटाइल मतलब वेपर ही नहीं बनाएगा. सो व्हेन यू मिक्स देम, तो प्योर कंपोनेंट फॉर ए, लेट P1 नॉट विल बी दी प्योर प्रेशर. ठीक है, PA be the partial pressure when they are mixed and XA will be the mole fraction. ठीक है, तो मैं XA को X1 कर देता हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ A. अब अगर मैं नॉन वोलेटाइल की बात करूँ तो ये तो वेपर्स बनाने वाला ही नहीं है. तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो P2 नॉट है वो ज़ीरो होगा. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ B विल बी ज़ीरो इन दैट केस. सो अगर इन दोनों को मैंने मिक्स किया तो आई कैन राइट डाउन दैट total pressure of solution will be equal to partial pressure of A plus partial pressure of B. That will be equal to partial pressure of A because this will be zero. Why? Because non-volatile solute नहीं बनाता, non-volatile solute vapors नहीं बनाता, तो उनके vapors pressure generate ही नहीं होंगे. अच्छा, PA will be equal to what? P1 naught X1. Now P1 naught is constant, so we can write down here the vapor pressure of the solution is directly proportional to the mole fraction of वोलेटाइल कंपोनेंट, जिसको हम लोगों ने क्या लिया है? सॉल्वेंट लिया है. ठीक है, दिस इज द सेकेंड केस ऑफ रॉल्स लॉ. अब इसमें क्या समझना जरूरी है? फर्स्ट पॉइंट, इसका ग्राफ. सो ग्राफ में अगर प्लॉट करूंगा, सिंपल ग्राफ है. दिस इज द वेपर प्रेशर विद द मोल फ्रैक्शन. अब मोल फ्रैक्शन सिर्फ किसका होगा? ओनली फॉर A, दैट इज अ वोलेटाइल कंपोनेंट, दैट इज X1. B तो वेपर्स बना ही नहीं रहा है. सो फॉर A वी कैन राइट डाउन दैट PA इज इक्वल टू P1 नॉट X1 प्लस ज़ीरो. फिर दो कंडीशन लेंगे आप, X1 को ज़ीरो ले लेंगे तो आपका पार्शियल प्रेशर ज़ीरो हो जाएगा, और X1 को 1 लेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A विल बी इक्वल टू द प्योर प्रेशर. सो ये कब होगा? ये होना चाहिए कंडीशन में. ठीक है, सो नाउ इफ दिस इज योर X1 विच इज ज़ीरो, तो वेपर प्रेशर यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ A विल बी ज़ीरो. फिर यहाँ से आप इंक्रीज कर रहे हो और जा रहे हो X1 इज इक्वल टू 1, तो ऑब्वियसली C ज़ीरो है, स्लोप पॉजिटिव, इंक्रीजिंग लाइन. यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सो हियर यू शुड गेट व्हाट? P1 नॉट. ठीक है, यह आप लोगों को यहाँ पर मिलना चाहिए इसके अंदर. तो दिस शुड बी द ग्राफ फॉर व्हेन यू ऐड दिस. तो अब ये जो वेपर प्रेशर होगा दैट विल बी वेपर प्रेशर ऑफ PA, और PA एक्चुअली क्या है? द PA इज द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन. तो वी कैन राइट डाउन दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन. सो इसकी जगह पे आप प्लॉट कर सकते हो वेपर प्रेशर ऑफ एंटायर सोल्यूशन. बट एक चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर. नाउ P1 नॉट इज द प्योर प्रेशर. ठीक है, and P solution is the vapor pressure of the entire solution. So you have to remember one thing, a very important thing. ये ग्राफ एक्चुअली में कैसा होना चाहिए, ध्यान देना. आइडियली हम लोग ने ग्राफ बना दिया जैसा हम लोग ने आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ बनाया था, बट जस्ट रिमेंबर, मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था कि इफ़ यू टेक लिक्विड, क्लोज कंटेनर लेना है, हम लोग ने लिक्विड लिया है, दिस लिक्विड A इज वोलेटाइल, तो यहाँ पर इसके वेपर्स प्रोड्यूस हो गए, दैट विल बी P1 नॉट. देन यू ऐड अ नॉन वोलेटाइल सल्यूट टू इट. जब आप इसमें नॉन वोलेटाइल सल्यूट डालोगे तो आपको याद है मैंने बताया था कि जो सल्यूशन बनेगा, अब दिस इज अ सल्यूशन नॉट प्योर, दिस इज सल्यूशन. अब इसके सरफेस पे A के साथ कुछ नॉन वोलेटाइल सल्यूट हो गए, सपोज वो आयनिक सॉल्ट है तो कटायन आयन है सपोज, नॉन वोलेटाइल, तो ये वेपर्स तो नहीं बनाएंगे, तो यहाँ पर नंबर ऑफ वेपर्स प्रोड्यूस बाय A विल बी लेस. तो यहाँ पर लेस वेपर प्रोड्यूस होगा बिकॉज अब जो नॉन वोलेटाइल है वो सरफेस पे आके जगह ले लिया, वो अपने वेपर्स नहीं बनाएगा, वोलेटाइल वेपर बनाएगा, तो योर दे विल बी मोर वेपर्स. तो ज़्यादा वेपर होने से P1 नॉट वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए और कम वेपर होने से P सोल्यूशन कम होना चाहिए. सो व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सल्यूट इज एडेड, non volatile
सल्यूट, जो मैंने अभी आपको स्टार्ट में भी बताया था वेपर प्रेशर में, व्हेन नॉन वोलेटाइल सल्यूट इज एडेड टू volatile solvent, then vapor pressure of solution decreases. इसका मतलब solution का vapor pressure P1 नॉट से कम होना चाहिए. ये एक्चुअल फंडा है इसके अंदर. ओके, so guys, you need to remember in this कि whenever a non-volatile solute is added to a volatile solvent, then the vapor pressure of the solution decreases. And this is a graph. अभी एक ही साइड ग्राफ क्यों है? Because it is only for one component. The second component will be zero in that case. तो ये हम लोगों को याद रखना बहुत ज़रूरी है. इसके लिए exactly जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो P1 नॉट इज इक्वल टू P सोल्यूशन नहीं मिलेगा, उससे वैल्यू आपको थोड़ा कम मिलेगा. एग्जैक्टली P1 नॉट नहीं मिलेगा. तो दिस डिफरेंस इज बेसिकली अ डेल्टा P, दैट इज द लोअरिंग ऑफ प्रेशर. आपको मिलना चाहिए था आंसर P1 नॉट, बट आपको एक्चुअल जो P सोल्यूशन मिलेगा वो कम मिलेगा. तो दैट इज अ लोअरिंग. ये P सोल्यूशन आपको कम मिलेगा और मिलना चाहिए था आपको P1 नॉट. तो क्यों कम मिल रहा है? उसका रीजन क्या है? बिकॉज व्हेन यू ऐड अ नॉन वोलेटाइल सल्यूट, द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन डिक्रीजेस. So the difference will be called as lowering of vapor pressure. मतलब अगर मैं ये निकालूँ डेल्टा P, the difference of P1 नॉट माइनस P solution, तो ये प्योर का था और ये सोल्यूशन बनने के बाद का था. तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं lowering of vapor pressure. याद रखना, डेल्टा P is called as lowering of vapor pressure. So whenever a non-volatile solute is added to a volatile solvent, then the vapor pressure of the solution decreases. ओके, तो आपको एग्जैक्टली P1 नॉट नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा कम मिलेगा वैल्यू. सो जो डिफरेंस जो इनका होगा दैट विल बी कॉल्ड एज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. मतलब यहां पर प्योर प्रेशर सपोज आपको 180 m मिल रहा है, तो नॉन वोलेटाइल डाल दोगे तो वो 180 m से कम मिल रहा है, दैट इज समझो 0.680 m मिल रहा है. सो द डिफरेंस दैट इज 0.480 m विल बिकम्स डेल्टा P इन दिस केस. ओके, so ये नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो राउल्ट्स लॉ हैज टू केसेस, वन विल बी वोलेटाइल प्लस वोलेटाइल, जो आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं आपको याद होगा, बट डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग इज जीरो, डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग इज जीरो, बिकॉज द इंटरैक्शन ऑफ द लिक्विड्स इन देयर प्योर फॉर्म इज इक्वल टू द इंटरैक्शन व्हेन दे आर बीन मिक्स टुगेदर. और उसके बाद दूसरा केस आता है जब आप वोलेटाइल लिक्विड्स को नॉन वोलेटाइल्स के साथ में मिक्स करते हो, तो नॉन वोलेटाइल वेपर्स नहीं बनाते, तो जो भी वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन रहेगा दैट विल बी इक्वल टू द mole fraction of volatile components, that is P solution will be equal to P1 not X1 volatile के लिए. and when you plot a graph, आपको ये समझ में आ जाएगा कि P solution का आपको वैल्यू मिलना चाहिए था exactly P1 नॉट के आसपास, बट वो उससे थोड़ा कम मिलेगा. रीजन, बिकॉज whenever in a volatile solvent when you add a non volatile solute, what happens to the vapor pressure decreases, क्योंकि सरफेस पे अब नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स भी आ जाएंगे जो वेपर बनाने वाले नहीं है, तो नंबर ऑफ वेपर इन द सोल्यूशन विल बी लेस as compared to the original form, and that difference is called as lowering of vapor pressure. तो pause करके जो भी note down करना है please note it down, then we'll move on to the next part of this. Okay, let's discuss few important points after Raoult's law that is related to Raoult's law. The first important point is Raoult's law is a special case of Henry's law. Now we know that in case of Raoult's law, the partial pressure of any component is equal to mole fraction into its pure pressure from Raoult's law. Henry's law क्या बोलता है? The partial pressure of any gas over solution is directly proportional to the mole fraction of gas. तो अगर बराबर देखोगे तो in both the cases P0 and KH are constant. तो अगर ये दोनों केस में कांस्टेंट है तो वी कैन राइट डाउन कि यहाँ पर भी पार्शियल प्रेशर है, ये भी पार्शियल प्रेशर है, सो वी कैन राइट डाउन बोथ केस पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन. सो बेसिकली राउल्ट्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ. रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, वी हैव टू टाइप्स ऑफ लॉज विद रिस्पेक्ट टू वेपर्स. फर्स्ट इज राउल्ट्स लॉ एंड सेकेंड इज डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जो आपने 11th में किया है with respect to the gaseous mixture. और डेल्टन्स लॉ क्या बोलता है? डेल्टन्स लॉ ये बोलता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस
is equal to mole fraction of that gas into total pressure. ये डेल्टन्स लॉ बोलते हैं. तो सपोज हम लोग ने दो लिक्विड लिए है, ए और बी, दोनों वोलेटाइल है, ठीक है. तो अब हम लोग क्या करेंगे, लेट x1 बी द मोल फ्रैक्शन, x1 be the mole fraction of A in liquid phase, x2 will be the mole fraction of B in liquid phase. तो x का जो मोल फ्रैक्शन है स्मॉल x जो है वो लिक्विड फेज है. अच्छा, y क्या होगा, y will be the mole fraction of A in vapor phase and y2 will be the mole fraction of B in vapor phase. तो x को हम लोग ने मोल फ्रैक्शन बनाया लिक्विड फेज में और y को हम लोग ने मोल फ्रैक्शन बनाया है वेपर फेज में. अब बराबर देखो, राउल्ट्स लॉ के हिसाब से द पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड ए कंपोनेंट पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज इनटू इट्स प्योर प्रेशर. और डेल्टन्स लॉ के हिसाब से पार्शियल प्रेशर ऑफ ए विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन गैसियस फेज वेपर फेज इनटू टोटल प्रेशर. तो ये राउल्ट्स लॉ से आ रहा है और ये डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से आ रहा है. बट गाइज, दिस राउल्ट्स लॉ में जो x1 है इट इज द मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज और डेल्टन्स लॉ में जो y1 है दैट इज अ मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज. तो अगर दोनों के पार्शियल को हम लोग इक्वेट करेंगे तो फॉर दिस पार्ट फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट डाउन, मैं लिख देता हूं वापस से, दैट x1 p1 नॉट इज इक्वल टू y1 pt. तो y1 के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, therefore y1 will be equal to, that is mole fraction of A in vapor phase will be equal to x1 mole fraction of A in liquid phase into its pure pressure divided by total pressure. अब ये total pressure क्या होता है, total pressure is nothing but wave pressure of solution. So x1 into p1 naught upon p solution. अब p solution क्या होता है, P solution is partial pressure of A plus partial pressure of B. But partial pressure of A क्या होता है, P1 naught x1. Partial pressure of B क्या होता है, P1 naught P2 naught x2. तो हम लोग इसकी जगह पे राउल्ट्स लॉ का पूरा इक्वेशन लिख सकते हैं, दैट इज P1 naught x1 plus P2 naught x2. तो दिस विल बी द मोल फ्रैक्शन इन विच फेज, वेपर फेज. और ये उसका रिलेशन है विद द मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेस, याद रखने का. सिमिलरली 3 और 4 को सॉल्व करोगे तो y2 भी मिलेगा आपको p सोल्यूशन के साथ. इसको भी हम लोग ये लिख सकते हैं फाइनली, दैट x2 इंटू p2 नॉट अपॉन p1 नॉट x1 प्लस p2 नॉट x2. सो दिस y2 विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ b इन वेपर फेस एंड x2 विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ b इन लिक्विड फेस. सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स इन लिक्विड एंड इन वेपर फेज. ये हम लोगों को याद रखने का, अगर वेपर और लिक्विड का पूछा तो बहुत सिंपल है, दोनों लॉ को इक्वेट करना है, दैट्स इट. नोट डाउन करो प्लीज, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. Okay guys, now let's discuss ideal and non-ideal solution after Raoult's law. Okay, so मैंने Raoult's law में आप लोगों को बताया था कि when you mix two volatile component and if after mixing those two volatile component, if the volume of the resultant solution is equivalent to the volume of liquid added, then the delta V of mixing, the change in volume will be 0, and in that case the heat absorb and heat evolution reaction won't take place. There will be no heat absorbed, no heat evolved during the reaction. So such type of solution will obey Raoult's law for a long range of their concentration, and those solutions are called as ideal solutions. So ideal solutions are those binary solutions which obey Raoult's law over entire range. The delta V of mixing is 0. मतलब suppose आपने 50 ml बेंजीन लिया है और 50 ml टोलिन लिया है, दोनों को मिक्स कर दिया. मतलब आप मिक्स कितना कर रहे हो, 100 ml. आफ्टर मिक्सिंग दे विल फॉर्म अ सोल्यूशन. सोल्यूशन का वॉल्यूम भी 100 ml आएगा. इसका मतलब बिफोर मिक्सिंग दे वर टोटल 100 ml, आफ्टर मिक्सिंग दे वर 100 ml. सो डेल्टा V बिकम 0. नाउ व्हेन यू मिक्स बेंजीन विद टोलिन टुगेदर, हमने टोलिन मिक्स किया है बेंजीन के साथ में, तो व्हेन दे आर मिक्स टुगेदर their interactions are similar to the interaction in their pure state. Means
in pure form of benzene, benzene is interacting with another benzene. In pure form of toluene, a toluene is interacting with the another toluene. So the interaction of benzene-benzene and interaction of toluene-toluene is similar to the interaction of benzene-toluene when they are mixed together. So in such solution, the delta H of mixing will be zero, मतलब ना तो heat absorb होगा ना तो heat evolve होगा, क्योंकि उनके interaction after mixing is similar to their interaction in the pure state before mixing. So benzene का जो interaction होगा और toluene का जो interaction होगा, that will be similar to benzene toluene when they are mixed together. So that is the ideal solution, जिसमें delta V of mixing is zero है, delta H of mixing zero, but entropy of mixing कभी भी zero नहीं हो सकता, because when you mix them, the random race, the number of vapors will increase, the number of substance in gaseous state will increase, तो entropy will increase. So entropy तो वैसे भी change होने ही वाला है, वो zero नहीं होगा, ठीक है, because number of molecules in vapor phase will increase, so randomness will increase. तो reason क्या है why this mixing and delta H is zero? Because in ideal solution, suppose we consider ideal solution of two volatile liquid A and B, then the interaction between A and B after mixing in solution state is same as that of A and B in their pure state. Example देख लो, benzene, toluene, hexane, heptane, ethyl chloride, ethyl bromide, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन. तो इसमें ज़रा सिमिलैरिटी आइडेंटिफाई करो. बेंजीन और टोल्यूइन में सिर्फ एक CH2 का डिफरेंस है, हेक्सेन हेप्टेन में एक CH2 का डिफरेंस है. मतलब नॉर्मली आइडियल सोल्यूशन में एक एक CH2 का डिफरेंस होता है, या तो फिर उनका बेस कंपाउंड सेम होगा, सिर्फ ग्रुप्स चेंज हो जाएंगे. लाइक हैलोजेंस में क्लोरीन ब्रोमीन आ गया, बट बेस कंपाउंड इज सेम. यूर ऑल्सो बेस कंपाउंड इज सेम. तो सच आर आइडियल सोल्यूशंस. ओके, बट प्रैक्टिकली कोई भी सोल्यूशन आइडियल नहीं होता. दे बिहेव आइडियली अंडर लो कॉन्सेंट्रेशन. और इनका ग्राफ अगर समझना है तो यू हैव टू रिफर द राउल्ट्स लॉ. आपको याद होगा राउल्ट्स लॉ टू वोलेटाइल कंपोनेंट्स का मैंने एक ग्राफ बनाया था, एंड दैट ग्राफ फॉर टू वोलेटाइल कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी, द ग्राफ गोज लाइक दिस. आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि दिस इज ग्राफ ऑफ पी बी, दैट इज P02 into X2. This is graph of PA, that is P1 not X1, and ये जो लाइन होती है that is P solution, that is PA plus PB. और आपको याद होगा ये जो पॉइंट होता है that is for P02 and this is P01. यहाँ पर आपने वेपर प्रेशर यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ B लिया था, आपने यहाँ पर वेपर प्रेशर यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ A लिया था. आपको याद होगा यहाँ मोल फ्रैक्शन होता है. यहाँ पर हम लोग अज्यूम करते हैं कि x2 0 है, यहाँ पर x2 1 है. सिमिलरली हम लोग अज्यूम करते हैं कि यहाँ पर x1 1 है और यहाँ पर x1 0 है. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ आइडियल सोल्यूशन राउल्ट्स लॉ में जो हम लोगों ने निकाला था. ठीक है, अब सेकंड सोल्यूशन क्या हो गया? सेकंड इज नॉन आइडियल सोल्यूशन. नॉन आइडियल सोल्यूशन मतलब वेयर द इंटरैक्शन ऑफ द टू कंपोनेंट्स आर नॉट सेम with respect to the pure state. Either interaction is strong or other interaction is weak. So those are called as non-ideal solution which does not obey Raoult's law at all range of concentration. ठीक है, डेल्टा H of mixing जीरो नहीं होगा. इसका मतलब या तो हीट एब्जॉर्ब हुआ है या तो हीट रिलीज हुआ है, एक्सो और एंडो. डेल्टा V of mixing जीरो नहीं होगा. मतलब आप 50-50 ml दो मिक्स कर रहे हैं तो वो टोटल 100 ml से कम आएगा या 100 ml से ज़्यादा आएगा. ओके, Why? Because in non-ideal solution of A and B, the interaction of A and B is not similar to compare to A and B and B. या तो ये interaction weak हो सकता है as compared to A and B, या तो ये interaction strong हो सकता है. इसके लिए दो टाइप के interaction के वजह से there are two types of non-ideal solution. One with a positive deviation and one with a negative deviation. Positive deviation मतलब सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर रहेगा उससे ज़्यादा आएगा, एक्सपेक्टेड ज़्यादा होगा. और नेगेटिव डिविएशन मतलब जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा उससे एक्सपेक्टेड जो रहेगा उससे कम मिलेगा आपको. दैट इज नेगेटिव डिविएशन. सो नाउ वी विल सी द एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव डिविएशन एंड नेगेटिव डिविएशंस इन राउल्ट्स लॉ विद रिस्पेक्ट टू नॉन आइडियल सोल्यूशन. जब तक ये पॉज करके इफ यू वांट टू नोट डाउन यू कॉपी इट आउट एवरीथिंग. So guys, there are two types of non-ideal solution, one with positive deviation and one with negative deviation. ठीक है, अब positive और negative deviation क्या है? So let us take an example of ethanol with cyclohexane.
अब सिर्फ इथेनॉल की आप बात करोगे तो इन अ प्योर फॉर्म ऑफ इथेनॉल यू हैव C2H5OH attached to another C2H5OH in a pure state of ethanol. कैसा? डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस और हाइड्रोजन इट्स पोलर, दे आर अटैच्ड टू ईच अदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो इथेनॉल का जब आप प्योर लिक्विड रहोगे तो उसमें इथेनॉल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है. बट मोमेंट यू एड साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन कम्स इन बिटवीन एंड ट्राई टू फॉर्म इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग एंड इट ब्रेक्स द बॉन्ड बिटवीन इथेनॉल. अब इथेनॉल का इंटरैक्शन अगर ब्रेक हो जाएगा सो दे आर सेट फ्री एंड दे मूव इनटू द वेपर स्टेट. तो वी कैन से दैट कि when you have pure ethanol, that is A and A, and when you add a component B, that is cyclohexane, cyclohexane will break the interaction between ethanol, due to which the ethanol is set free and go into which state? Gaseous state. और ये खुद भी कौन से स्टेट में चले जाएगा? Gaseous state. So more number of vapors will be formed, and here we can say the interaction between A and B. तो A and B का जो इंटरैक्शन है वो वीक है एज कंपेयर टू A and A and B and B. So that is the reason कि यहाँ पर ज़्यादा वेपर फॉर्म हो गए एंड इट विल शो अ पॉजिटिव डिविएशन. मतलब आपने जो वॉल्यूम मिक्स किया है और जो रिजल्टेंट वॉल्यूम आएगा वो ज़्यादा आएगा. मतलब डेल्टा विल V of mixing will be positive plus the delta H of mixing will be endo. मतलब इनको अगर रिएक्ट करवाना है तो आपको हीट करना पड़ेगा इसके अंदर मिक्स होने पे. अब इसका ग्राफ की हम लोग बात करते हैं तो आपको याद होगा इन केस ऑफ आइडियल सोल्यूशन द ग्राफ गोज लाइक दिस, वे यू प्लॉट वेपर प्रेशर विथ मोल फ्रैक्शन. आपको याद होगा दो लिक्विड के लिए एक का ग्राफ ऐसे था. सपोज ये मैंने राउल्ट्स लॉ में सिखाया था फॉर टू कंपोनेंट्स A and B. दिस इज अ ग्राफ ऑफ PB, पार्शियल प्रेशर ऑफ B. याद होगा आपको दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ A और दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ solution, that is PA plus PB. But during positive deviation more number of vapor are formed because the interaction between two components are weak. तो ज़्यादा वेपर होने की वजह से the actual vapor pressure of component B will be more, component A will be more and vapor pressure of solution will be more. तो मतलब ये हो गया आपका actual P solution, this is actual PB and this is actual PA. Why? Because A और B का इंटरैक्शन स्ट्रॉन्ग था, लेकिन जब आप A और B को मिक्स करोगे तो A और B का इंटरैक्शन इज वीक एज कंपेयर टू A एंड B. तो दैट इज वाई जब इंटरैक्शन A और B का वीक रहेगा तो दे आर सेट फ्री, दे गो इनटू द वेपर स्टेट, दे प्रोड्यूस मोर वेपर देन द एक्सपेक्टेड फॉर्म. दैट इज वाई यू गेट अ पॉजिटिव डिविएशन, अ पॉजिटिव कर्व एंड यू हैव टू रिमेंबर दीज एग्जाम्पल्स फॉर इट. ज़्यादा देखो एसीटोन यूज हो रहा है इसके अंदर बनाने में. Acetone plus carbon disulfide, ethanol, cyclohexane, benzene acetone, ethanol acetone, ethanol water, they give you positive deviation. When you mix them, they produce more vapor. Okay? तो जब A और B को नॉर्मल आइडियल सोल्यूशन में क्या होता है, जब आप दो लिक्विड मिक्स करते हो तो उनके प्योर फॉर्म में जो इंटरैक्शन था वो इंटरैक्शन उनके मिक्स्ड फॉर्म में मिलेगा. लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशन में ऐसा नहीं है. पॉजिटिव डिविएशन में इंटरैक्शन वीक हो जाते हैं A और B के, इसके लिए ज़्यादा वेपर्स बन जाएंगे क्योंकि इंटरैक्शन वीक है तो दे कैन इजीली गो इनटू द वेपर स्टेट. अब नेगेटिव डिविएशन में क्या होगा, उसका उल्टा होगा. जब आप दो लिक्विड मिक्स करते हो तो A और B का इंटरैक्शन स्ट्रांग हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल वी टेक एग्जाम्पल ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, इसी का ही ले लेता हूँ. अब देखो एसीटोन का अगर प्योर लिक्विड देखोगे तो वहां पर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 इज इंटरैक्टिंग विद CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. वैसे ही एक क्लोरोफॉर्म है CHCl3, वो दूसरे क्लोरोफॉर्म से इंटरैक्ट करेगा. ठीक है, हम लोग इसको डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस लेके इंटरैक्ट कर सकते हैं. तो यहां पर ये इंटरैक्शन हो रहा है. तो दिस इज इंटरैक्शन ऑफ AA, दिस इज इंटरैक्शन ऑफ BB आपस में. बट व्हेन यू मिक्स देम टुगेदर, जब आपने दोनों को मिक्स किया एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को, सो व्हाट विल हैपन व्हेन यू मिक्स एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म टुगेदर, दोनों को जब आप मिक्स करोगे तो एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O
CH3 में कार्बोनिल ग्रुप इज पोलर, डेल्टा माइनस ऑन ऑक्सीजन एंड डेल्टा प्लस ऑन कार्बन. इट गोज इन इंटरेक्शन विथ क्लोरोफॉर्म जहां पर हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस होता है एंड दे फॉर्म अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होने की वजह से ए और बी का इंटरेक्शन स्ट्रांग हो गया. स्ट्रांग हो गया मतलब अब वो सोल्यूशन में होल्ड करके रहेंगे, वो वेपर में नहीं जाएंगे. तो उनके प्योर स्टेट में वेपर ज्यादा थे, लेकिन मिक्स करने के बाद आपको वेपर कम मिल रहे हैं. सर कम क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि ये दोनों ने एक दूसरे को होल्ड करके रखा है स्ट्रांगली. सो वी कैन से हियर इन दिस केस ए बी इंटरेक्शन इज स्ट्रांग, और इंटरेक्शन स्ट्रांग है मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा है. तो ए एंड बी विल होल्ड ईच अदर स्ट्रांगली एज कंपेयर टू ए एंड बी बी. मतलब ए का आप प्रेशर चेक करोगे और बी का प्रेशर चेक करोगे. सो ए बी का प्रेशर आपको ए और बी का जो प्रेशर रहेगा दैट विल बी लेस एज कंपेयर टू ए एंड बी बी, बिकॉज यहां पर ए एंड बी ने एक दूसरे को होल्ड करके स्ट्रांगली रखा है. एग्जाम्पल दिया है बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसके वजह से इनके नंबर ऑफ वेपर्स लिक्विड से वेपर स्टेट जाने में कम हो जाते हैं. तो इट शोज अ नेगेटिव डिविएशन. क्लियर है? तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा नेगेटिव डिविएशन का, तो ऑब्वियसली आइडियल वेपर से इनके वेपर्स कम आ रहे. तो यहां पर मैंने मोल फ्रैक्शन लिया है, योर देयर इज अ वेपर प्रेशर. तो आइडियल कंडीशन में हम लोगों को ऐसा ग्राफ मिलना चाहिए था. आपको याद होगा अभी मैंने बनाया वापस से सेम ग्राफ. सो दिस विल बी योर पीए, दिस इज योर पीबी. ये होना चाहिए और ये आपका पी सोल्यूशन होना चाहिए. बट एक्चुअली में पीबी आपको कम मिलेगा. तो दिस इज योर एक्चुअल पीबी. पीए कम मिलेगा इन अ सोल्यूशन स्टेट. तो दिस इज योर एक्चुअल पीए, और पी सोल्यूशन भी कम मिलेगा आपको. सो दिस इज पी सोल्यूशन एक्चुअल. सो सी प्रॉपर्ली, यू गेट अ नेगेटिव डिविएशन, मतलब नंबर ऑफ वेपर्स ज्यादा नहीं कम बनेंगे. इस केस में नंबर ऑफ वेपर्स ज्यादा बनेंगे, मतलब इस केस में जो पीए पीबी है वो पी नॉट x1 से ज्यादा होगा, इस केस में पी नॉट x1 से कम होगा. सो दिस इज positive deviation where the interaction of A and B is weak. If the interaction is weak, they can easily go into the vapor state, producing more vapor in non-ideal solution. If A and B interaction is strong, interaction strong होने के वजह से they produce less vapor. So negative deviation, positive deviation from the ideal behavior. Pause करके copy कर लो जो करना है. Okay guys, let's talk about azeotropic mixture. Now azeotropic, this word is used coming from a Greek word which means constant boiling mixture. तो दो लिक्विड्स को जब आप मिक्स करोगे, ये बोल रहा है कि दो लिक्विड को आप मिक्स करोगे, सो इट विल फॉर्म अ कांस्टेंट बॉइलिंग. तो ये समझने के लिए लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड इथेनॉल. नाउ वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 373 केल्विन. ठीक है, तो वाटर हैज़ अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 373 केल्विन. इथेनॉल हैज़ अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 351 केल्विन. ये दोनों का मिक्सचर मैंने आपको दिया है. आपने इसको एक राउंड बॉटम फ्लास्क में लिया. टू कैरी आउट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यू यूज़ अ लीबेक कंडेंसर, thermometer, if you remember that fractional distillation process from basic principle and technique in organic chemistry to separate two liquids. तो आपने ये दोनों लिक्विड वाटर और इथेनॉल को, एक का बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन है और एक का 373 केल्विन है, इस मिक्सचर को आपने राउंड बॉटम फ्लास्क में डाल दिया, हीट किया. सबसे पहले कौन सा टेम्परेचर आएगा? 351 केल्विन. जैसे ही वो टेम्परेचर रीच होगा, द थर्मामीटर 351 रीच होगा, इथेनॉल विल स्टार्ट बॉइलिंग. आप उसको बाहर निकाल लो, कंडेंस कर लो. व्हेन द एंटायर इथेनॉल इज रिमूव्ड, देन आफ्टर सम टाइम द टेम्परेचर स्टार्ट राइजिंग. तो जब तक कि इथेनॉल नहीं आएगा, द टेम्परेचर इन द थर्मामीटर रिमेन कांस्टेंट एट 351. then when the entire ethanol is removed, it comes out, then temperature start rising because सिर्फ water है अंदर, and then you have a temperature 371 reached जिसमें water बाहर आ जाएगा. So you can separate them at two different temperature. This process is called as fractional distillation, जो हम लोग ने 11th standard में देखा है. So to separate two liquids, mixture of two liquids, that is called as fractional distillation. ये carry out करके आप कोई भी दो liquids को separate कर सकते हैं. But मैंने अगर आपको इथेनॉल वाटर का मिक्सचर दिया है
95.6% ऑफ इथेनॉल बनाकर। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 100 ग्राम में से 95.6 ग्राम मैंने इथेनॉल लिया है, ठीक है, और 4.4 ग्राम वाटर लिया है। देख लो, 95.6 ग्राम इथेनॉल लिया है और 4.4 ग्राम वाटर लिया है। अगर दोनों का आप ऐड कर दोगे तो आपका फाइनल जो होगा वो 100 ग्राम ही बनेगा। तो कंपोजिशन कैसा लिया मैंने 100 ग्राम बनाने के लिए? 95.6 ग्राम इथेनॉल लिया, 4.4 ग्राम ऑफ वाटर लिया, उसका मिक्सचर आपको दिया और मैंने बोला फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करो। यू विल स्टार्ट हीटिंग इट। व्हेन यू स्टार्ट हीटिंग इट, आपके दिमाग में आएगा कि सर इथेनॉल इज 351, पहले वो रीच होगा, इथेनॉल बाहर आ जाएगा, देन वाटर विल कम आउट। ऐसा नहीं होगा। इनफैक्ट बोथ ऑफ देम विल बॉयल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 351.5 केल्विन। और जब आप उस कंडेंस लिक्विड को निकालोगे तो उसमें इथेनॉल भी निकलेगा और वाटर भी निकलेगा। मतलब दे डू नॉट बॉयल एट डिफरेंट टेम्परेचर, दे विल बॉयल एट सेम टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो सच मिक्सचर इज कॉल्ड एज एजियोट्रोपिक मिक्सचर। बट ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाने के लिए आपको दोनों कंपोनेंट्स को एक सर्टेन स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन में लेना पड़ेगा। समझो यू टुक 40% ऑफ इथेनॉल इन वाटर, मतलब 40 ग्राम इथेनॉल 60 ग्राम वाटर। आप मुझे पूछेंगे सर ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर है क्या, ये सेम टेम्परेचर पे बॉयल होगा? नो, इट वोंट। आपको अगर वाटर इथेनॉल को सेम टेम्परेचर पे बॉयल करवाना है, सो यू हैव टू मेक द कंपोजिशन ऑफ 95.6% इथेनॉल, तो ही होगा। क्लियर है? तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर पहले क्या होते हैं? दे आर दोज मिक्सचर विच बॉयल्स एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, देयर कंपोजिशन इज फिक्स्ड। कोई भी कंपोजिशन पे आप एजियोट्रोपिक मिक्सचर नहीं बना सकते। लेकिन जब आप दो लिक्विड मिक्स करते हो तो आइदर वो पॉजिटिव डिविएशन दिखाते हैं और नेगेटिव डिविएशन दिखाते हैं। पॉजिटिव डिविएशन मतलब जहां पर वेपर ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं इजीली, वेयर द इंटरैक्शन ऑफ टू लिक्विड्स आर वीक। और ऐसा हो सकता है कि जब आप दो लिक्विड मिक्स कर रहे हो, दोनों का इंटरैक्शन बहुत स्ट्रांग हो, तो वो नेगेटिव डिविएशन दिखाते हैं। तो खुद सोचो, अगर जहां वेपर ज्यादा बनेंगे तो वो इजीली बॉयल होगा, और जहां वेपर कम बनेंगे वो इजीली बॉयल नहीं होगा। तो इसके लिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर, मिनिमम बॉइलिंग एंड मैक्सिमम बॉइलिंग। मिनिमम बॉइलिंग जो कम टेम्परेचर पे बॉयल हो जाते हैं। व्हाई? बिकॉज दे शो पॉजिटिव डिविएशन। पॉजिटिव डिविएशन मतलब प्रोड्यूसिंग मोर वेपर्स वेयर ए एंड बी का इंटरैक्शन इज वीक। आपको याद होगा, मतलब आपने वाटर और इथेनॉल को 95.6% पे डाला, मिक्स किया, तो वाटर और इथेनॉल का इंटरैक्शन वीक होगा, वो ज़्यादा वेपर बनाएंगे देन द एक्सपेक्टेड, देयरफॉर दे शो पॉजिटिव डिविएशन। और अगर वो वेपर जल्दी बना रहे तो वो जल्दी बॉयल होंगे। इसके लिए आप बराबर नोटिस करोगे तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 है, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 351 है, बट इनका जो 95.6% का मिक्सचर है वो बॉयल हो रहा है 351.5, 373 नहीं, 351.5। देखो लोअर एंड पे बॉयल होगा क्योंकि वेपर ज़्यादा बन रहे तो जल्दी बॉयल हो गया। अब दूसरा है मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रोप। यहाँ पर क्या होगा? इंटरैक्शन विल बी स्ट्रॉन्ग। तो अगर इंटरैक्शन ऑफ टू लिक्विड्स इज स्ट्रॉन्ग, देन टू ब्रेक देम यू रिक्वायर ग्रेटर एनर्जी। तो मतलब जब इंटरैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा तो वो नेगेटिव डिविएशन दिखाएंगे, मतलब कम वेपर, आइडियल से कम वेपर प्रोड्यूस करेंगे, तो उनको वेपर स्टेट में जाने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा। एग्जाम्पल, वाटर HCl मिक्स किया आपने 20.2%, मतलब 20.2 ग्राम HCl लिया है और बाकी का 100 ग्राम में से रिमेनिंग अमाउंट वाटर है, दोनों को मिक्स किया। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 है, HCl का बॉइलिंग पॉइंट 188 है, लेकिन मिक्सचर देखो किस पे बॉयल हो रहा है, ना 373 ना 188, 373 भी ज़्यादा, 381.6। वाई? बिकॉज यर दे शो नेगेटिव डिविएशन, मतलब लेस वेपर है, मतलब द इंटरैक्शन बिटवीन A and B is strong and your the interaction between A and B is weak, तो ये जल्दी बनाएंगे। लेकिन आपको समझना क्या ज़रूरी है इसमें कि these are the mixture which boils at a constant temperature, ठीक है। और इस कंपोजिशन को हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि आप हीट करोगे दोनों साथ में बॉयल होकर बाहर आ जाएंगे, बट कंपोजिशन फिक्स होना चाहिए इन सब एग्जाम्पल्स में। फॉर एग्जाम्पल वाटर HNO3, you took it 68% of HNO3
इन वाटर, मतलब 68 ग्राम वाटर है और 32 ग्राम आपका 68 ग्राम HNO3 है और 32 ग्राम आपका वाटर है। देखो कंपोजिशन ऑफ बी के हिसाब से लिखा है मैंने, तो 68% HNO3 मतलब 68 ग्राम HNO3 एंड 32 ग्राम वाटर। व्हेन यू मिक्स देम, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373, HNO3 का 359, बट बॉयल देखो हायर पे हो रहे 393। वाई? बिकॉज वाटर एंड HNO3 हैज स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, तो उनको वेपर फेज में डालने के लिए आपको ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होने की वजह से वो नंबर ऑफ वेपर्स आइडियल से कम बनाएंगे तो नेगेटिव डिविएशन, और अगर आइडियल से ज़्यादा बनाएंगे पॉजिटिव डिविएशन तो वो कम पे बॉयल होंगे। सो पॉजिटिव डिविएशन मिक्सचर फॉर्म्स मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप एंड मैक्सिमम एंड नेगेटिव डिविएशन मिक्सचर फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग। आपको यहाँ पर सिंपल कॉमन सेंस ही यूज़ करना है। इंटरैक्शन स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा, इंटरैक्शन वीक है, कम टेम्परेचर लगेगा, लेकिन लिक्विड्स का कंपोजिशन फिक्स्ड होना चाहिए। मतलब 68% ऑफ HNO3 ले रहे हो तो ही वो कांस्टेंट पे बॉयल होगा। यू टेक इट एज 20% कांस्टेंट पे बॉयल नहीं होगा, दोनों अलग अलग बाहर आ जाएंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ हो जाएगा। लेकिन अगर ये परसेंटेज पे लोगे तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते, बिकॉज दे विल बॉयल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। दैट इज वाई isotropic mixture are binary mixture having same composition in liquid and vapor phase। मतलब जब वो बॉयल हो रहे तो लिक्विड में भी दोनों कंपोनेंट दिख रहे हैं, वेपर में भी दोनों दिख रहे हैं, ठीक है। एंड दे बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दो टाइप के हैं, मिनिमम एंड मैक्सिमम बॉइलिंग। मिनिमम बॉइलिंग शोज पॉजिटिव डिविएशन, मैक्सिमम बॉइलिंग शोज नेगेटिव डिविएशन। ओके गाइस, सो पॉज करके जो भी नोट डाउन कर रहा है कर लो। दिस इज ऑल अबाउट एजियोट्रोपिक मिक्सचर।